السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسما جمشید فرام دی پلیٹ فارم آف فیمنسٹی۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو آج کل سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت ہر شخص جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، چاہے اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو۔ ہر انسان سوشل میڈیا سے مستفید ہوتا ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سوشل میڈیا سے ہونے والا ذہنی دباؤ، یعنی کہ اسٹریس۔ سوشل میڈیا اسٹریس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، تو آپ سب کے جتنے سوال ہیں اس حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا اسٹریس کے حوالے سے اور ہیلتھ ریلیٹڈ جتنے کوشچنز ہیں آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آج ہم ان پروگرام میں ایڈ کریں گے اور ان سب کے جواب بھی آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود رحمان موجود ہیں۔ آپ جنرل فزیشین ہیں، ہولسٹک ہیلر کنسلٹنٹ ہیں، ٹرینر فار مائنڈ سائنسز ہیں، ایکسپرٹ ان کنونشنل اور آلٹرنیٹیو میڈیسن ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام، کیا حال ہے کا؟ الحمد للہ، اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سو انیشیٹ کرنے کے لیے میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کے ساتھ تھوڑی سی ہسٹری شیئر کریں سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کے یوزز اور بینیفٹس کے بارے میں ہم پہلے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ذہنی دباؤ کے حوالے سے آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ جی اسما، تو سوشل میڈیا کی ہسٹری تو یہ ہے کہ سینما سے شروع ہوئی تھی کوئی 100 سال پہلے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈرامہ، ریڈیو، ٹی وی جب آیا تو پھر وہ اتنا ٹائم لیتا تھا گھروں میں کہ آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس گھر میں یا تو ٹی وی رہے گا یا بیوی رہے گی، تو یہ ایک جوک ہی سمجھیں۔ تو آج کل تو سوشل میڈیا کا اتنا زور شور ہے، پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا، پھر اب جو ٹیلی فون ہیں اور آئی فونز ہیں اور ٹچ موبائلز ہیں، تو ان میں آپ پہلے تو میسیج شروع ہوئے تھے، ایس ایم ایس سے سلسلہ شروع ہوا، ٹیلی فون سے ہوا، اور ساری رات پیکج لے کے لوگ فون کرتے تھے، کیونکہ ان کمپنیز کو جنہوں نے اس کو شروع کیا ان کو اسی سے فائدہ تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یوز کریں۔ اور ابھی یہ ہے کہ وائی فائی، اور لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ وائی فائی اور وائف میں کیا فرق ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگ، ہر شخص جو ہے تقریباً کینیڈا میں 70% لوگ جو ہیں یہ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا، اور 18 سے 29 سال کے جو نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں وہ تقریباً 90% ہیں جو یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کیا اس میں فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، اور سنیپ چیٹ ہے، پھر انسٹاگرام ہے، پھر یہ اپنا لائکی ہے، اور ٹک ٹاک ہے، اور اس طرح سے بے شمار ہیں، اور ابھی بنتے جا رہے ہیں یہ پلیٹ فارم، تو جو لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ رات کو جب سونے لگتے ہیں تو سب سے آخری کام کیا کرتے ہیں، اور جب صبح اٹھنے لگتے ہیں تو سب سے پہلا کام دن میں کیا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ سب سے پہلے موبائل کی اسکرین دیکھتے ہیں کہ کوئی میسیج تو نہیں آیا۔ تو یہ اب عجیب و غریب مصروفیت ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے۔ بالکل صحیح، اور یہ تو ہم سب کی ایک عادت سی بن گئی ہے کہ سب سے پہلے فون چیک کرنا۔ تو یہ کتنی حد تک صرف ضرورت ہے، اور کب ہمیں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اب اس کے اسٹریس کا شکار ہونا شروع ہو گئے؟ تو اسٹریس کی طرف آنے کے لیے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ کب لوگ سوشل میڈیا کو اسٹریس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ جی، سوشل میڈیا سے یہ نہیں ہے کہ صرف سٹریس پیدا ہو رہی ہے، بلکہ اس کے علاوہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ایون سوئسائڈل تھاٹس ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی ایڈکشن بن گئی ہے۔ اور ایڈکشن اسی کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے معمول کے کام نہ کر سکیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹ آنے لگے، آپ کی نیند خراب ہو جائے، آپ کو اور کوئی مسائل، ٹینشن رہنے لگے، یا کوئی خوف رہنے لگے ذہن پہ۔ اس کے علاوہ اس کے پھر اثرات جسم پہ بھی رونما ہو سکتے ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کو شوگر کی تکلیف ہو جائے، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کسی کو معدے کے مسائل پیدا ہو جائیں، یا کسی کو ہیڈک رہنے لگے۔ تو یہ اس کے اثرات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی سوشل میڈیا نے اپنے نقصان دہ اثرات دکھانے شروع کر دیے ہیں۔
तो वहाँ पे फिर हमें इसका नोटिस लेना चाहिए। वैसे तो ये आगाज़ तो इसका एक नेमत की तरह ही हुआ था, और जितने भी अब ये नॉलेज के लिए एक हाईवे फॉर द नॉलेज है। और लेकिन ये इसी तरह है कि जैसे आप एक किचन में आप देखें ना, किचन नाइफ होता है कि सब्जी काटने के लिए आप छुरी इस्तेमाल करते हैं, उसी छुरी को अगर कोई आपको कोई दहशतगर्द के हाथ में आ जाए तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी नेमत भी है जिसे अगर हम अच्छा एक तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल करें और एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बगैर एहतियात के, तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। बिल्कुल सही आपने बात की। आपने अपने जवाब में एडिक्शन का कहा। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम लोगों को ये आगाह करें, इसको बताएं कि जी, तो एडिक्शन के हवाले से आपने ज़िक्र किया, तो मेरा सवाल ये है कि एडिक्शन और स्ट्रेस में जी जी। हम किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं? एडिक्शन ये है कि थोड़ा सा डिफरेंस हम ये रखेंगे कि स्ट्रेस जब पैदा होगी तो वो उससे एडिक्शन पैदा होगी। जब स्ट्रेस पैदा होती है फिर लोग कहते हैं कि भाई हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए या कुछ सुकून आवर दवा खा लें या स्मोकिंग कर लें या और कोई जैसे केमिकल एडिक्शन है। लोग तो हेरोइन और चर्च की बात तो खैर हम नहीं करते, लेकिन असल एडिक्शन की एग्जांपल तो वही हैं। तो कहने से मुराद ये है कि एक केमिकल एडिक्शन होती है जैसा कि वो लोग ड्रग्स लेते हैं, और एक नॉन केमिकल एडिक्शन होती है जिसमें सोशल मीडिया भी है, जिसमें गैम्बलिंग भी है, जिसमें बाद लोगों को खरीदारी का शौक होता है, शॉपिंग भी है, बाद लोगों को जो है ये गेम्स का है, म्यूजिक का है, बहरहाल अपना अपना। लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई वैसे तो ये थोड़े थोड़े जो नशे हैं उनको जो नुकसानदेह नशा है उससे बचें, और जो अच्छे आदात हैं उनको अडॉप्ट करें। और नशा छोड़ने का भी बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसका मुतबादल ढूंढें कि अगर आप नशा छोड़ेंगे तो उसके मुतबादल और कौन सी एक्टिविटी है जिसमें आप मसरूफ रहेंगे, ताकि आपको नशे से डिस्ट्रैक्शन हो और नशे वाली कैफियत आपको याद ना आए। बिल्कुल सही। तो एडिक्शन और स्ट्रेस का आपने फ़र्क बताया, तो सोशल मीडिया स्ट्रेस की मैं जानना चाहूँगी कि कौन-कौन सी वजूहात हैं, जिनकी वजह से सोशल मीडिया स्ट्रेस होता है? अच्छा, उसकी वजूहत ये है कि मैं ये रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने आजकल तो इस पे बड़ी रिसर्च भी हो रही है सोशल मीडिया पे और बड़े यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो उन्होंने बताया कि ये हाईलाइट रील्स होते हैं कि लोग भिजवा रहे हैं कि बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वो इस तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे लगा दी, कहीं सैर के लिए गए हैं तो सीन की तस्वीर लेके वहां लगा दी, अपनी सेल्फी बनाई और फौरन वो सोशल मीडिया पे लगा दी। तो उससे लोग असल में अपनी तरफ से तो वो इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये एक ब्लास्ट जो इन्फॉर्मेशन का है ये नुकसान दे देता है। फिर लोग कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि वो तो उसमें ग्लैमर दिखाया जाता है और तस्वीरों में जो असल हकीकत नहीं होती, वो फेक होती हैं अक्सर चीज़ें। तो लेकिन लोग उनसे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और उससे यहाँ तक मुतासर होते हैं कि जब वो कंपेयर करने लगते हैं, किसी से मुआवजा करते हैं, तो उनमें कोई एहसास कमतरी पैदा हो सकता है, उसमें महरूमी का एहसास पैदा हो सकता है। सबसे पहला तो ये नुकसान है जिसको टेंशन की तरफ लेके जाता है। फिर दूसरा नुकसान इसका ये है कि फिर इसके जो कहते हैं कि भाई आप इसकी करेंसी क्या है, सोशल मीडिया की करेंसी क्या है, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, और सब्सक्राइब करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसकी करेंसी है। जैसे मीडिया चैनल्स की रेटिंग होती है, तो रेटिंग जब तक ना आए तो उस वक्त तक वो आपकी तसल्ली नहीं होती है, और रेटिंग कम हो जाए परेशान होने लगते हैं। यहाँ तक मैंने देखा है कि वो किसी की फौतगी की खबर आ रही है और उसको लाइक किए जा रहे हैं, लोग लाइक किए जा रहे हैं, साथ कमेंट भी लिख रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं इस बात को इस फहम में आती है बात कि भैया उसको लाइक करने का क्या मकसद है। तो इसके बाद इसके जो इसका एक तीसरा रुख है वो कहते हैं फोमो। फोमो क्या है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोई चीज रह ना जाए, कोई खबर रह ना जाए, हर 2-3 घंटे बाद, कुछ देर के बाद, हर चंद मिनट के बाद आप उठा के देख रहे हैं फोन को, कोई ऐसा मैसेज रह तो नहीं गया जो मैंने नहीं देखा,
या शायद हमें इंतज़ार होता है किसी किसी मखसूस फ़र्द से कोई ख़ास मैसेज आना है, वो लेकिन वो आता नहीं है और हम बस उसी में रहते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, की कोई चीज़ रह ना जाए। अच्छा, इसमें असल में ये होता है कि बल्कि मैं कार्टून देख रहा था, उसमें उन्होंने दिखाया कि ये सोशल मीडिया ऐसे ही है कि एक मैसेज आता है, मैसेज के शुरू में एक घर वाले अपना कूड़ा साथ वाले घर में फेंकते हैं, वो उठा के अपने साथ वाले घर में फेंक देते हैं, और वो उठा के उससे अपने साथ वाले घर में फेंक देते हैं। तो इसका मतलब है ये एक ट्रैश है, और ये एक किस्म का ज़्यादातर कूड़ा ही होता है जो उठा के उधर उधर फेंक रहे हैं, और उसको हम शेयर करते जा रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसमें से कौन सी चीज़ शेयर करने वाली है और कौन सी नहीं है। तो असल में तो हमें उसे सेंसर करना चाहिए और देखना चाहिए कि फला चीज़ को हम शेयर कर सकते हैं। और फिर इसका जो एक और नुकसान बड़ा है वो ये है कि हरासमेंट और किसी फ्रॉडुलेंट चीज़ें। हरासमेंट ये है कि ख़ास तौर पे ख़वातीन को मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज या कमेंट्स दिए जाना, या फिर उनके फ्रॉडुलेंट ये है कि मीडिया के ज़रिए अब बहुत से फ्रॉड भी हो रहे हैं, लोगों को ईमेल आ रही होती है या मैसेज आ रहे होते हैं कि जी आपका इनाम निकल आया है, आप इतने पैसे भिजवा दें, अपने डॉलर भिजवा दें, पाउंड भिजवा दें। तो इस तरह का फ्रॉड भी चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में आके ना, सोशल मीडिया में इन चीज़ों ने ख़राबी पैदा की है, और जो लोग इन चीज़ों के शिकार होते हैं, ज़ाहिर है नेचुरली उनमें भी स्ट्रेस पैदा होती है। बिल्कुल, आपने बहुत सारी वजूहात बताई यहाँ पे जो कि सोशल मीडिया स्ट्रेस का बायस बनती हैं। तो जब कोई शख्स सोशल मीडिया स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, तो ये स्ट्रेस हमारे किन-किन अवामिल पर असरअंदाज होता है? कौन-कौन से हमारे ऐसे काम हैं या हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होता है और कौन-कौन से अवामिल पर असरअंदाज होता है? जी, सबसे पहले तो ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, अब ये है कि जितना भी ज़रूरी काम हो, आप बहुत से काम हम छोड़ के बैठ जाते हैं, ऑफिस का काम छोड़ के, जो पढ़ाई है वो मुतासर होती है। और फिर इसमें यह है कि एक होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो काम आप छोड़ देते हैं वो फिर कल पे चला जाता है, फिर कल से अगले दिन पे चला जाता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि सोशल मीडिया से आपको सरासर नुकसान ही होता है। और कुछ लोग जिनके पास टाइम वापर है वो उसे उस पे जो वेस्ट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, टाइम किल करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक मुहावरा है, कहते हैं कि इफ़ यू आर किलिंग द टाइम, टाइम विल किल यू। कि अगर आप टाइम खामखा खर्च कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ वक्त गुजार रहा हूँ, तो ये फिर एक वक्त आएगा कि टाइम विल किल यू, यानी आपको उसका बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए खाली टाइम किल करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये भी गलत है। और जो लोग एक्चुअली इसको फ़ायदा उठाते हैं, वो उसके फ़ायदा उठाने के तरीके भी हैं कि उसको सेंसर किया जाए। उसमें सैकड़ों पोस्ट करने, आप ग्रुप में देखें, एक एक ग्रुप में सैकड़ों पोस्ट आ रही होती हैं, हालांकि उसमें अगर सिलेक्शन की जाए, देखा जाए तो चंद 2-4 पोस्ट होती हैं जो पढ़ने के काबिल हैं, या जिनका ताल्लुक इल्म से है, या जिनका ताल्लुक खबरियत से है। अच्छा, अफवाहें भी फैल रही होती हैं, ये भी सोशल मीडिया की का एक टेंशन है। उसमें आ रहा है कि फला फौत हो गया, फला फौत हो गया, पता चलता है कि नहीं, वो तो ठीक ठाक है। इसी तरह लोगों के बारे में जो इल्ज़ामात हैं, तोहमतें हैं, वो लग रही होती हैं। तो अभी मैं सुबह आज देख रहा था, तो चल सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही थी कि कोई हमारे सिंगर हैं, कोई अली ज़फ़र के बारे में आ रहा था, कोई अमीषा शफ़ी के बारे में आ रहा था, फिर कोई और खातून कोई आ गई हैं, तो वो लीना कोई गनी हैं। तो ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, और वो जनाब सोशल मीडिया उन्हें जो है हाईलाइट कर रहा था। तो इस तरह से हम अपने असल जो है अपने मकसद ज़िंदगी उसको छोड़कर, और हम ट्राइवियल्स में और जो फ़ुरुआत में पड़ जाते हैं, और उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में जिन पे हमें अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और यहाँ हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि अगर उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं। कामरान खान कहते हैं कि हाउ वी विल हेल्प आवर यंग जनरेशन फॉर अवे फ्रॉम बैड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, बैड इफ़ेक्ट, एंड हाउ वी विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। वो पूछना। जी, अच्छा, इसकी हिस्ट्री मैंने थोड़ी-सी बयान करनी शुरू की थी। अब इसमें एक एक दौर आया था कि वीडियो गेम्स भी आई थी, ठीक है? वीडियो गेम इसलिए आज से आई थी कि उनकी शॉप्स, हर गली में एक शॉप खुल गई थी और बड़ी स्क्रीन होती थी, और बच्चे जाके उसमें वीडियो गेम खेला करते थे। उस वक़्त तक वाई-फाई इतना नहीं था। तो उस वक़्त भी ये था कि अगर कोई पॉज़िटिव गेम्स है ना, तो उससे आपका कुछ ज़हनी क्रिएटिविटी बढ़ती भी है,
لیکن اس کے باوجود اس کے نقصانات اتنے تھے کہ لوگ بچے پڑھائی سے دور چلے جاتے تھے، والدین بلکہ ان کو منع کرتے تھے کہ یہ نہ دیکھیں. اور آج کل دیکھیں جب وائی فائی کا دور آ گیا ہے تو اب بات اس سے کہیں آگے چلی گئی ہے، اور اب ایسی ایسی گیمز آ گئی ہیں جیسے وہ پب جی ہے یا بلو ویل ہے، اور ان میں پڑھ کے لوگ اپنی جان تک گنوا دیتے ہیں. تو یہ اس کے بہت ایکسٹریم تک چلی گئی ہیں. اور یہ ہے کہ جیسے لوگوں کی ذہنیت ایسے ہے کہ جب انہیں جس چیز سے منع کیا ہے وہ کیا جائے وہ اسے ضرور دیکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو کوئی قدغن لگائی جائے، اور خود جو لوگ یہ چیزیں تیار کرتے ہیں، جو ایپس تیار کرتے ہیں یا جو گیم تیار کرتے ہیں، وہ سائیکولوجیکلی اس کو تمام اصول کو سامنے رکھیں، اس کے مطابق اسے بنائیں تاکہ بچوں کی، نوجوانوں کا ذہن خراب نہ ہو. بالکل، یہاں پہ ہم ایک اور سوال بھی ایڈ کریں گے. اسد شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپیکٹ سوشل میڈیا in kids till 10 years. Nowadays, kids are busy in social media. They never think for parents. جی جی. اب آپ یہ دیکھیں نا، سوشل میڈیا جو ہے یہ 2 سال کے بچے سے لے کے اور 100 سال کے بوڑھے تک استعمال کر رہے ہیں. اور بچے تو ایسے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے اگر آپ فون چھین لیں تو وہ رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ واقعی انہوں نے صحیح بات کہی ہے کہ 10 سال کی عمر تک تو ان کو فون پکڑانا ہی نہیں چاہیے. اور البتہ یہ ہے کہ تھوڑی نو ہو کمپیوٹر کے بارے میں بتائی جائے، اور خاص طور پہ اس دور میں اور کرونا کی وجہ سے جو اب آن لائن ایجوکیشن آ گئی ہے، تو ان کو اس آن لائن ایجوکیشن کے ابتدائی نو ہو انہیں دینی چاہیے، ان کو معلومات دینی چاہیے، طریقے بتائے جانے چاہیے. اور یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو اب ایسے لیسنز اور جا کے اس میں میتھمیٹکس، اس میں اردو، اس میں انگلش، اس میں اچھی جو پازیٹیو سٹوریز ہیں، اچھے مورل والی سٹوریز ہیں، وہ ان کو استعمال اگر کرائی جائیں تو ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے. بالکل، یہاں پہ آپ نے آن لائن کلاسز کے حوالے سے بھی بات کی، تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آن لائن کلاسز یا جو لوگ اپنا کام آن لائن کر رہے ہیں، کیا وہ بھی کسی اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں؟ اور اگر ہوتے ہیں تو وہ اس پر کس طرح سے قابو پائیں؟ اچھا، اس سٹریس کا تعلق اس حد تک ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ میڈیا کے ذریعے ہی کام کر رہے ہیں تو آپ واقعی تھک جاتے ہیں. اگر کانسٹنٹلی جیسے آپ کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کا ایک اٹینشن سپین ہوتا ہے، اسی طرح لیکچر سنتے ہوئے ایک اٹینشن سپین ہوتا ہے کہ آپ 25 منٹ 30 منٹ اتنا اٹینشن سپین ہوتا ہے. اب لوگوں نے رول آف 20 رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، گھر سے آن لائن کام کر رہے ہیں یا آن لائن آپ لیکچر سن رہے ہیں، تو انہوں نے رول آف 20 رکھا ہے کہ ہر 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کا وقفہ کر لیں، تھوڑا سا وقفہ کر لیں اور ریلیکس کر لیں، ہاتھ ایسے آنکھوں پہ رکھ کے بیٹھ جائیں یا 20 قدم چل لیں اٹھ کے، تاکہ آپ بیٹھے بیٹھے سارا دن ایسے جکڑے نہ جائیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ جھک کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، یہ میڈیا پہ فون کو دیکھتے ہیں، یہ کمپیوٹر پہ، تو آپ کے کندھے، آپ کی گردن، آپ کا اسپائن یہ متاثر ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں آلویز سٹ اینڈ اسٹینڈ اور اسٹینڈ ٹال، کہ آپ کمر کو سیدھا رکھیں، گردن کو سیدھا رکھیں، روشنی صحیح ہونی چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس سے آنکھوں کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں اگر ضرورت سے زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں. روشنی کم زیادہ ہونے سے بھی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ آنکھیں سوشل میڈیا کے لیے بنائی نہیں گئی، کیونکہ چاند سورج جو قدرت نے بنائے ہیں ان کی روشنی میں آنکھیں کام کرتی ہیں. ہم نے جو مصنوعی روشنیاں پیدا کی ہیں وہ لازماً آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہیں. صحیح، یہاں پہ آپ نے ان علامات کا بھی ذکر کیا جو کہ ہوتی انسان میں آ جاتی ہیں، جس طرح آنکھوں کا خراب ہونا. تو یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بیسیکلی سوشل میڈیا اسٹریس سے ہمارے مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ جی اسما، یہ بہت ضروری سوال ہے، کیونکہ جب اسٹریس ہوگی، ڈپریشن ہوگا، انگزائٹی ہوگی تو کیا ہوگا؟ غصہ آنے لگتا ہے، انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کام میں دل نہیں لگتا، نیند نہیں آئے گی، اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر وہ دن میں اونگتے رہیں گے، ڈرائیونگ صحیح نہیں کر سکیں گے، اس کے نتیجے میں کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کے مضر نقصانات، جس کے لیے بعض اوقات ہمیں
साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें सेशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है मेडिसिन लेने की ज़रूरत पेश आए। तो अभी तो सोशल मीडिया के बारे में इतने चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई, मे भी हो रहा हो ऐसा, क्योंकि मैं भी जैसे एडिक्शन के लिए वो रिहैब सेंटर्स में जाना पड़ता है, मे भी एक ऐसा वक्त आ जाए कि सोशल मीडिया से जो बहुत ज़्यादा मुतासर लोग हैं उनको भी रिहैब में उनका इलाज किया जाए, उनको सेशन दिया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, और मे भी उन्हें मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी पड़े। बिल्कुल सही है। हम ख़तरनाक हद तक इसका इस्तेमाल करते हैं जिसके रिज़ल्ट्स ये हो सकते हैं जो आपने अभी जिनका ज़िक्र किया। तो मेरा सवाल ये है कि हम अपने आप को सोशल मीडिया स्ट्रेस में दाखिल होने से किस तरह से रोक सकते हैं? हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं कि हम सोशल मीडिया स्ट्रेस का शिकार ना हों? सबसे पहले तो ये है कि अभी हमें इस क्रेज़ से निकलना चाहिए। लोगों को क्रेज़ हो गया ना कि ये ऐसी एक ऐप्स लोगों के हाथों में आ गई है कि चलो जी हर वक्त एक तो गेम की तरह खेलते रहें। मे बी विद टाइम लोग इससे उकता जाएं, लेकिन ये है कि अब देखें बात फजूल किस्म के मैसेज एक दूसरे को भिजवा रहे होते हैं। और क्या होता है अक्सर में यही होता है कि जी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर या जुम्मा मुबारक। इसके अलावा और कोई अच्छा मैसेज हमें कोई काम का जिसके कोई मैसेज हो जिसमें वो बहुत कम होता है कि जिसमें आपकी मालूमात में इजाफा हो, कोई अक़वाल ज़रूरी हों, कोई ऐसी वीडियोज़ हों जो मालूमाती हों, ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि जो साइंटिफिक हो। तो ये देखा गया बल्कि साइंटिफिक ग्रुप्स में भी लोग यही चीज़ें भिजवा रहे होते हैं बस सुबह बखैर। और अब पहले तो जब मैसेजेस का दौर था एसएमएस का, उस वक्त तो गुड नाइट भी भेजा करते थे। तो आजकल गुड नाइट कहीं नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हमने नाइट ख़त्म ही कर दी है। तो शायद आप मीडिया पे ही होते हैं या फिर जो बहुत देर तक 3-3-4 बजे तक जाग रहे होते हैं। तो हमें अब वाकई इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमें नोटिस लेकर अपने आदत को ठीक करना चाहिए, अपने बिहेवियर को ठीक करना चाहिए, और इसको खुद सेल्फ सेंसरशिप कायम करके इससे हमें सिर्फ वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी चाहिए और मीडिया का इतना इस्तेमाल करना चाहिए इस हद तक कि ज़्यादा ना। अब देखें 2-3 घंटे भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा है, क्योंकि इतना टाइम तो हम खाना खाने में भी नहीं लगाते। तो ये भी है, ये फूड फॉर थॉट है। कहते हैं कि आप जो खा रहे हैं उसका उसका ख्याल रखें कि वो आपसे आपका जिस्म बन रहा है, और जो फूड फॉर थॉट है जो आप जहन को खिला रहे हैं जिससे आपका जहन बन रहा है, तो वो भी आप सोचें कि उसको आप जहन को क्या खिला रहे हैं। तो ये भी एक किस्म की डाइट है जो हमें सोशल मीडिया की सूरत में मिली है, और हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और उसका ऑडिट करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि वो किस हद तक हमें उसको इस्तेमाल करना है और किस हद तक इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल, यहाँ पे आपने मैसेजेस की बात की जो रिसीव हो रहे होते हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें जिसमें फ़ेसबुक और ट्विटर और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं जहाँ पे पब्लिक आपकी पोस्ट के ऊपर जवाब देती है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जिससे जो तनकीद के ज़ुमरे में आते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म नहीं होता, बल्कि ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको बुरी लगती हैं या उसके बाद से आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को कोप करने के लिए, उनसे उनके असर से बचने के लिए क्या किया जाए? उनके असर से बचने के लिए ऐसा ही है कि हमारे जो सोशल मीडिया पे जो जो लोग तालिब इल्म हैं या जो सोच समझ रखते हैं, वो लोग उसको उसमें इस्लाह पैदा करें। उसमें देखें कि मसलन एक फ़ोटो किसी ने लगाई है एक ही एंगल से, और एक ही फंक्शन की 50 तस्वीरें लगा दी हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब लोग आए हैं उसको लाइक करने वाले। अब अगर आपका कोई उसमें बड़ा है, कोई बुजुर्ग है या कोई सेलिब्रिटी है, तो हर बंदा उसको लाइक कर रहा है, चाहे वो बात सही है या गलत है। तो यहाँ उस अगर किसी ने कोई गलत पोस्ट की है तो उस पर हमें तनकीद भी करनी चाहिए। गलत तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए तामीर। अब देखें बाद लोग आप देखते हैं कहते हैं मसलन बकरीद है, अब वो जानवरों को ज़बह करने की वीडियोस हैं वो डाल देते हैं सोशल मीडिया पे। मैं तो बाकायदा उनसे फिर मैं अपने कमेंट्स में लिख देता हूँ कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि इसमें तो वो ये चीज़ें देखने वाले कोई कमज़ोर दिल हज़रात भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। वही चीज़ें जो हमने रखी हुई हैं कि टीवी पे फला फला खबरें या फला तरह की सीन ना दिखाए जाएं,
टेररिज्म के सीन ना दिखाए जाएं, वही सोशल मीडिया पर भी सादिक आती हैं। तो हमें चाहिए कि खुद ही सेल्फ सेंसर करें और उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया में दिखाएं, और जो गलत कोई चीज़ दिखाई जाती है तो उस पर तनकीद ज़रूर करें और तामीरी तनकीद करें। और इसके अलावा यह है कि बाद लोग ऐसे भी हैं बीच में, बहुत कम अगरचे उनकी तादाद है, बीच में कोई वल्गर लैंग्वेज भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और अब तो वो चूँकि वो पोर्नोग्राफी और इन चीज़ों का भी दौर है, तो उससे जो मुतासर लोग हैं वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, और उनको वाकई सख्ती से रोकने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो सारे असरात होते हैं इंसान पे, ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं, ये इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा कि हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, और एज ए नेशन जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर किस तरह से ये असरअंदाज होते हैं। क्योंकि जो इंसान सोशल मीडिया स्ट्रेस या किसी भी स्ट्रेस का शिकार है, उसने यकीनन इसी माशरे में पलना जी। और पढ़ना है। तो इस हवाले से भी थोड़ी सी आगाही। असल में ये अब इंटरनेशनल कल्चर है जो सोशल मीडिया के ज़रिए हर जगह फैल रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी अपनी जो मशरकी रवायात हैं उनको भी ज़िंदा रखना है। ऐसा मीडिया, अब देखें कि आप एक घर में आप बैठे हुए हैं, बच्चे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े जो हैं वो मीडिया पे क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे का भी, अब वो एक कमरे में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और बाहर चैटिंग हो रही है, एक सोफे बैठे हैं लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे। तो इसमें सोशली हम एक तो आइसोलेट हो गए अपने अपने लोगों से जो करीब हैं, फिजिकल आइसोलेशन हो गई है ये। और दूसरों से जो दूसरे लोगों से जो फ्रेंड से जब गुफ्तगू कर रहे हैं उनसे हम समझते हैं कि वो करीब हैं, हालांकि हमें सबसे पहले तो अच्छा, इससे फिर हमारी सोशल स्किल्स भी मुतासर होती हैं कि जैसे हमारे लोगों से मिलना जुलना, सलाम करना, कोई लोगों का एहतराम करना, अच्छी गुफ्तगू करना, तो वो सोशल स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी मुतासर हो रही हैं हमारी। तो ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमारा अपना कल्चर क्या है, उसको प्रमोट करना है। अच्छा, लिबास से मुतासर हो रहे होते हैं, मगरबी लिबास से मुतासर हो रहे होते हैं, उरानिया की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि इन तमाम चीज़ों का, अखलाकियात का भी ख्याल रखें और अपने रहन सहन में जो इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने लिबास में इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें हमारा कल्चर और हमारा दीन क्या सिखाता है। और हम ये समझते हैं कि अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो हमारी सोसाइटी एक बनी रहेगी, ये निज़ाम स्मूथली चलता रहेगा। और अगर हम बिल्कुल मादर पितर आज़ाद हो जाएं और आंखें बंद करके अंधी तकलीद शुरू कर दें मगरिब की, तो वो हमारे लिए मुफीद नहीं है, हमें लाजमन उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना डिटेल हमारे व्यूवर्स के लिए बताया कि किस किस तरह से सोशल मीडिया जो है वो हमारी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हमारे रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़, इन सब पे इफ़ेक्ट होता है। तो मैं भी प्रोग्राम के एंड पे यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हम सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे काम का एक ज़रिया बन चुका है। लेकिन उसका इतना इस्तेमाल करें जितना हम सब जो है वो अपनी रिलीजियस कल्चरल वैल्यूज़ में रह कर सकें। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप जो पोस्ट डालते हैं तो आप लोगों को इजाज़त दे रहे हैं कि वो उसके ऊपर बात करें। तो उन सारी वैल्यूज़ के ऊपर आपने स्ट्रेस नहीं लेना और अपने आप को फ्री माइंड के साथ काम करें। इंशाल्लाह आप अपने काम में बहुत तरक्की करेंगे और इसी तरह के बहुत अच्छे टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अपनी होस्ट अस्मा जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। थैंक यू।